नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री राजन्ना का कहना है कि बीजेपी श्रीरामुलु का कांग्रेस में शामिल होने के लिए स्वागत है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 23 से 28 जनवरी तक उत्तर कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम और कोहरा या धुंध छाए रहने का अनुमान जताया है। इसलिए वाहन चालकों को आगाह किया गया है कि वे यात्रा करते समय विशेष रूप से सुबह और शाम के समय राजमार्ग पर कोहरे के अलर्ट की नियमित जांच करते रहे। इसके चलते आज इस मौसम का असर मनकखेली से बीदर के हाईवे पर आज सुबह लगभग 8 बजे के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे आगे रास्ता देखने वाहन चालकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ लोग इस मौसम और कोहरे का आनंद भी लेते नजर आए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 26 जनवरी रविवार शाम 4:30 बजे दलित संगठनों के महासंघ द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संविधान एवं लोकतंत्र विषय पर जनजागरण सम्मेलन एवं खुशी बैठक का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन की आयोजन समिति के अध्यक्ष विष्णुवर्धन ने कहा कि भारतीय संविधान के क्रियान्वयन के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। शुक्रवार को शहर के जिला प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव सम्मेलन में विशेष वक्ता होंगे, जबकि यादगीर सरकारी कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर जयदेवी गायकवाड़ सम्मेलन में मुख्य वक्ता होगी। सलाहकार समिति के सदस्य मारुति बौड़े, सलाहकार समिति के सदस्य बाबू पासवान, समिति के मानद अध्यक्ष शिव कुमार नीलीकट्टी और महासचिव अरुण पटेल ने बात की। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार कांबले, सलाहकार समिति के सदस्य श्रीपतराव दीने, कल्याणराव भोसले, रमेश कट्टुगम, अंबादास गायकवाड़ और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। बाबा साहब अंबेडकर ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ 26ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ್ಣು ವಾದೊಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀಲಕಟ್ಟಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಆಯಿತು। ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ, ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಂತೇಳಿ ಸಲಹೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂದರ್ ಅವರು, ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹೇಬರು, ರಮೇಶ್ ಡಾಕಳಿಗೆ ಅವರು, ಬಾಬು ಪಾಸವಣ್ಣ ಅವರು, ಶ್ರೀಪತರಾವ್ ದೀನೆ ಅವರು, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ, ರಮೇಶ್ ಕಟ್ಟಿತುಗೌ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಾಳಿಕರ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲ 1-2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾದವ್ ಅಂತೇಳಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು। ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:15ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು। ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಗಾರರು, ಸಂಪಾದಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಹಾಗೂ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು, 26ನೇ ತಾರೀಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಏನು ಕಂಡಂಥ ಕನಸು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಲ್ಲವಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಈ ದೇಶದಾಗ ಅದು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂವಿಧಾನ। ಆ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು 26 ಜನವರಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ
ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 26 ಜನವರಿ 1950 ಜಾರಿ ಬಂದು ಆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೀದರ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನ ಭೇದ ಭಾವ ಮರೆತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕುರಿತು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಪರವಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಬೀದರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रहे दुल्हन दरवाजे क्षेत्र में मदरसा जामिया हाशमिया में शनिवार को शाम 6 बजे दस्तरबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही हिफज उल कुरान के विद्यार्थियों का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में मौलाना मुफ्ती सैयद सिराजुद्दीन निजामी ने मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के संबंध में बताया। कैमरामैन फुराज का कवरेज। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तमाम सामाईन व नाजरीन को इस बात की इत्तला दी जाती है कि तकमील हिफ्ज़ कुरान के पुरनूर मौके पर ज़ेर एहतमाम जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाज़ा जलसा तक़सीम असनाद व ताए खलत व दस्तारबंदी का अहतमाम किया गया है, जिससे ख़िताब करने के लिए और जिसकी सरपरस्ती करने के लिए ज़ैनुल फ़िक़्हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला अमीर शरीयत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश और रुकन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड व अमीर जामिया निज़ामिया हैदराबाद बिलखुसूस तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ ही साथ सज्जाद नशीन बारगाह बंदा नवास गुलबर्गा शरीफ तक़द्दुस माप हाफिज़ सैयद अली अल हुसैनी साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ ही साथ तक़द्दुस माप पीर तरीक़त सैयद ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी साहब क़िबला और अलहाद डॉक्टर मोहम्मद इदरीस अहमद साहब क़िबला सज्जाद नशीन आस्ताना क़ादिरिया बगदल और मुक़ामी मशाइख़ हज़रत सैयद शाह असदुल्ला हुसैनी उर्फ़ साक़िब हुसैनी साहब सज्जादा नशीन बारगाह ख्वाजा अबुल-फ़ैज़ रहमतुल्लाह अलैह और आली जनाब ख्वाजा ज़ियाउल हसन साहब जागीरदार मुनव्वर चिश्ती निज़ामी सज्जादा नशीन बारगाह राजा बाग सवार बसव कल्याण और सैयद शाह हुसैन हुसैनी अलमारूफ पाशा हुसैनी बुखारी साहब क़िबला सज्जादा नशीन आस्ताना बुखारिया हमनाबाद और आली जनाब हज़रत अल्लामा सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला साबिक़ शेखुल माख़ूलात जामिया निज़ामिया और हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा अली सूफ़ी साहब क़िबला फ़र्जंद जानशीन आज़मुल मशाइख़ हैदराबाद और इसके साथ ही साथ आली जनाब डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब चेयरमैन शाहीन इदारा जात, आली जनाब डॉक्टर सैयद हिसामुद्दीन उज़ैर क़ादरी साहब और आली जनाब अब्दुल मन्नान सेठ साहब और आली जनाब फ़िरोज़ ख़ान साहब सदर वक्त एडवाइज़री कमेटी बीदर और आली जनाब मंसूर क़ादरी साहब और आली जनाब मोहम्मद जव्वाद अहमद साहब सदर ईदगाह कमेटी और आली जनाब सैयद मोहम्मद गौस साहब चेयरमैन सिटी म्यूनसिपलिटी काउंसिल बीदर और इसके अलावा आली जनाब सैयद सरफराज हाशमी एडवोकेट साहब क़िबला और आली जनाब सैयद तलहा हाशमी साहब और साथ ही साथ खुतबा इस्तक़बालिया के लिए नाज़िम इदारा आली जनाब हाफिज़ वक़ारी सैयद उमर हाशमी साहब बानी व नाज़िम जामिया हाशमिया बीदर ये मौजूद रहेंगे। इनके अलावा मुक़ामी उलमा इकराम भी शहनशीन पर मौजूद रहेंगे, मशाइखीन भी मौजूद रहेंगे और इस अज़ीम मौके पर जामिया हाशमिया से फ़ारिग़ तहसील 15 तलबा को उनके तकमील हिफ्ज़ कुरान के अज़ीम मौके पर सनद व खलात अता की जाएगी और दस्तारबंदी की जाएगी। ये बच्चे सिर्फ़ फ़ारिग़ ही नहीं हैं बल्कि वो शहर के मुख्तलिफ़ मसाजिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शहर में तशहीर हो रही है। आप तमाम हजरात से जामिया हाशमिया के दीनी तलबा इकराम जो 15 हुफ़ाज़ इकराम फ़ारिग़ हुए हैं उनकी अताए सनद और ख़िल्लत और दस्तारबंदी के सिलसिले में शहर में एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। इस बाबरकत महफ़िल में तशरीफ़ लाएँ और अपने दिलों में कुरान से मोहब्बत
और उलूम कुरान की अहमियत जानने के लिए और हुफ़ाज़ इकराम के लिए दीन इस्लाम में क्या मुकाम व मर्तबा है। ये जलसा बहुत ही पुरनूर और हिंदुस्तान के जय्यद उलमा इकराम की मौजूदगी में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो तमाम शहरियान बिदर और अतराफ़ व अकनाफ़ के कस्बात और ताल्लुक़ात के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो इस बाबरकत जलसे में शिरकत फरमाएँ और अपने क़ुलूब को कुरान की मोहब्बत और उलूम कुरान की अहमियत जानने के लिए इस बाबरकत जलसे में तशरीफ़ लाएँ। बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब फ़ौरन मगरिब के साथ ही एक मुनफरिद अज़ीमुश्शान मुनज़्ज़म पैमाने पर ये रूहानी जलसा जो है मुनक़िद होगा। मैं तमाम हज़रात से, शहर के ज़िम्मेदारान से, उलमा से, मशाइख से, अवाम से और तमाम तहरीक तंजीमों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मुक़द्दस जलसे में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें और इस्तिफ़ादा करने की आप मुकम्मल कोशिश करें। इंशाअल्लाह इस जलसे को मुकम्मल तरीक़े से कामयाब भी बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बिदर यूनिवर्सिटी बिदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बिदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कर्नाटका केंद्रीय विश्वविद्यालय कलबुर्गी से संबंधित प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी देने में तेजी लाने की मांग की, जो वर्तमान में केंद्र के समक्ष लंबित है। मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि कर्नाटका केंद्रीय विश्वविद्यालय न केवल कलबुर्गी और कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के 7 जिलों के छात्रों के लिए शिक्षा का केंद्र के रूप में कार्य करता है, बल्कि संपूर्ण कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों के कई क्षेत्रों के छात्रों के लिए भी शिक्षा का केंद्र है। खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ने कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षिक असमानताओं को दूर करने और विकास के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि ऐसे संस्थानों की विकास और वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के सतत वित्तीय और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है। खड़गे ने कहा कि नए स्नातकोत्तर विभागों, शिक्षण पदों और HIFA वित्त पोषण प्रस्ताव की मंजूरी, जो विश्वविद्यालय और क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने सभी करीबी मित्र और सहयोगी रहे गंगावती के विधायक गली जनार्दन रेड्डी के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए भाजपा नेता बी श्रीरामुलु ने दावा किया कि ये रेड्डी झूठ बोलने में माहिर है। श्रीरामुलु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने रेड्डी पर सार्वजनिक रूप से हमला किया। अपने पुराने दोस्त और भाजपा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा उन्हें फोन किया और तुरंत नई दिल्ली आने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि श्रीरामुलु ने मना कर दिया और कहा वह आने वाले सप्ताह में उनसे मिलेंगे। जब से राज्य भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने हाल ही में कोर कमेटी की बैठक में श्रीरामुलु की कथित रूप से भागीदारी न करने की बात कही, जिसके कारण संदूर उपचुनाव में पार्टी की हार हुई, तब से पूर्व मंत्री अग्रवाल से नाखुश है। सहकारिता मंत्री KN राजन्ना ने कहा कि भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु का कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत है। वह मेरे समुदाय ST नायक से एक शक्तिशाली नेता है। वह एक प्रभावशाली नेता है जो सभी समुदायों को विश्वास में ले सकते हैं। 2011 में अपनी खुद की पार्टी BSR कांग्रेस बनाकर श्रीरामुलु ने 2013 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीती। अगर वह भाजपा नेतृत्व से नाराज है तो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा।
राजन्ना ने तुमकुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गंगावती विधायक गली जनार्दन रेड्डी ने बंगारू हनुमंता को बढ़ावा दिया, जो हाल ही में संदूर से उपचुनाव हार गए थे। शायद श्री रामुलु को यह पसंद नहीं आया। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि मजबूत विनिर्माण क्षेत्र के लिए मजबूत मशीन टूल उद्योग आवश्यक है। वह बेंगलुरु में आइमटेक्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय मशीन टूल एवं विनिर्माण प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि मशीन टूल उद्योग पूंजीगत सामान क्षेत्र की आधारशिला है। उन्होंने भारत के विनिर्माण और आर्थिक विकास को गति देने में मशीन टूल उद्योग के महत्व पर जोर भी प्रकाश डाला। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी ने 5 दशक पहले उद्योग के विकास की नींव रखी थी। आज कर्नाटक नवाचार और उत्पादन उत्कृष्टता को बढ़ावा देना जारी रखता है। उद्घाटन के अवसर पर कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल भी उपस्थित थे। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप, जिन्हें पहलवान में उनकी भूमिका के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था, उन्होंने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। सुदीप ने कहा कि उन्होंने कई वर्षों से पुरस्कार लेना बंद कर दिया है। ऐसे में कई योग्य अभिनेता है जिन्होंने अपने दिल से अपने काम को समर्पित किया और वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उनसे कहीं अधिक रसर आएंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सुदीप ने कहा, कर्नाटक सरकार और जूरी के सदस्यों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के तहत राज्य पुरस्कार प्राप्त करना वास्तव में एक सौभाग्य की बात है और इस सम्मान के लिए सम्मानित जूरी को अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हालांकि मुझे यह व्यक्त करना चाहिए कि मैंने अब कई वर्षों से पुरस्कार प्राप्त करना बंद करने का फैसला किया है। यह निर्णय विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से लिया गया है, जिसे मैं बरकरार रखना चाहता हूं। कर्नाटक के वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने राज्य के वन विभाग से चारमाड़ी घाट में हाल ही में लगी जंगल की आग पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। खंड्रे ने अधिकारियों को आगे से हुए नुकसान और इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्री ने चिकमंगलूर जिले के मुदिगेरे तालुके के चारमाड़ी घाट के बिदिरुताला जंगल में लगी आग को बुझाने और मौके पर पहुंचने के विभाग के कर्मचारियों द्वारा लिए गए समय का विवरण भी मांगा। मीडिया से बात करते हुए खंड्रे ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव और वन विभाग के प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए हैं। वे सुनिश्चित करें कि सभी अग्निशमन सुविधाएं मौजूद हो और किसी भी आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हों। उन्होंने कहा कि गर्मियों के नजदीक आने के साथ ही वन विभाग को जंगल की आग को रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि ऋण लेने वालों के साथ धोखाधड़ी में कर्मचारियों और बिचौलियों की संलिप्तता की भी जांच की जाएगी। जारकीहोली ने शुक्रवार 24 जनवरी को संवाददाताओं से कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लेने वाले कई लोगों ने शिकायत की है कि बिचौलियों ने 50% सब्सिडी का आश्वासन देकर धोखा दिया, जो कि थी ही नहीं। अब उन्हें लोन चुकाने के लिए परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घटनाएं मेरे संज्ञान में आई हैं, जिनमें से एक घटना में एक महिला ने यमुनापुर के निकट उत्पीड़न सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली तथा दूसरे मामले में एक युवा मां को बेलगावी के तारीहाल में एक शिशु के साथ घर से निकाल दिया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर मनखेली सड़क पर छाया घना कोहरा। संविधान और लोकतंत्र पर जन जागरण सम्मेलन 26 जनवरी को आयोजित होगा, विष्णुवर्धन वल्दोदसी ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।